So beta, good morning to you. Today we are going to continue miscellaneous exercise. 5 questions तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे. Today we are going to discuss 6th question. In the 6th question, it is given that find the sum of all 2-digit number which when divided by 4 yield 1 as remainder. एक तो 2-digit नंबर होना चाहिए और दूसरा जब उसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आना चाहिए. ठीक है जी. यहाँ पे लिखेंगे required AP question number 6th required terms are देखिएगा बेटा 13, 17, 21, 25 and so on up to 97. क्योंकि हम लोग को ये कहा गया है कि 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आना चाहिए. मतलब क्या है कि जो 4 का टेबल है उसमें आप लोग एक 1 ऐड करते रहिए तो आप लोगों के पास गिवन सीक्वेंस आ जाएगी. अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो थ्रू आउट 4 का डिफरेंस है. इट मींस इट इज एन एपी. सो गिवन एपी में हमारे पास a इज इक्वल्स टू 13 एंड b इज इक्वल्स टू 4 है. l इज इक्वल्स टू 97. we need to find out the sum of all the terms. sum of all the terms find out करना है. 2 digit number 97 तक रहेंगे. तो पहले हम लोग number of terms find out कर लेते हैं. a plus n minus 1 into d is equals to 97. a मेरे पास आ जाएगा 13 plus n minus 1 into 4 is equals to 97. n minus 1 into 4 will become equals to 84. so n minus 1 is equals to 21. n की वैल्यू आ जाती है बेटा 22. तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 22. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट s22. सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है. s22 is equals to n by 2 into a plus l. फॉर्मूला क्योंकि मेरे को a भी गिवन है l भी गिवन है, सो आई अप्लाई फॉर्मूला n by 2 into a plus l. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 11 मल्टीप्लाई बाय 110. तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1210 as your answer. Understand? 1210 will be your answer. Now 7th question given है. If f is a function satisfying fx plus y, function है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है. fx plus y is equals to fx into f of y. fx plus y is equals to f of x into f of y है हमारे पास. Such that f1 is equals to 3. Condition given है f1 is equals to 3 and summation x is equals to 1 to n fx. Summation x is equals to 1 to n fx is equals to 120. मतलब क्या है कि सारी टर्म्स का सम 1 से लेकर n तक का टर्म्स हम लोग कंसीडर कर लें तो उन सब का सम जो है 120 गिवन है. We need to find out the value of n. इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. पहले देखें हमारे पास ये AP बनती है या GP बनती है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे. अब यहाँ पे f of 1 is equals to 3 गिवन है. लेट f of 2 देखें. f of 2 को बेटा मैं f of 1 plus 1 लिख रहा हूँ. ठीक है. तो अब गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंगली इट कैन बी रिटन एज f of 1 into f of 1. f of 1 की वैल्यू 3 गिवन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर comes out to be 9. इसके बाद f of 3 देखते हैं. अब f of 3 को लिखते हैं f of 2 plus 1 means to say according to this relation it will be f of 2 into f of 1. f of 2 की वैल्यू आई है 9, f of 1 की वैल्यू 3 है 27. एक टर्म और फाइंड आउट करके देख लेते हैं. f of 4. अब f of 4 को बेटा अब ध्यान दीजिए. f of 4 को हम लोग f of 2 plus 2 भी लिख सकते हैं, f of 1 plus 3 भी लिख सकते हैं. 2 plus 2 लिख लेंगे तो f of 2 into 2 आ जाएगा. 1 plus 3 लिखेंगे तो f of 1 into f of 3 आ जाएगा. फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर रिमेन द सेम. मैं इसको 1 चलिए 3 plus 1 ले लेता हूँ. It will be equals to f of 3 into f of 1, that is 27 multiplied by 3 is equals to 81. Therefore we get a sequence. सीक्वेंस कौन सी है बेटा जी? स्टार्ट हुआ था 3 से 9, 27, 81 एंड सो ऑन. इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? जीपी है with a is equals to 3 and r is also equals to 3 and sn बेटा हम लोगों को 120 गिवन है. ठीक है. sn का फॉर्मूला लगाते हैं a into r raised by n minus 1 over
minus 1 is equals to 120. पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आ गया 40, ये 3 minus 1 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 raised power n minus 1 is equals to 80. It implies 3 raised power n is equals to 81, or we can say that it will be equals to 3 raised power n is equals to 3 raised power 4. Comparing both sides कर लेते हैं, it implies n is equals to 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा. Okay. Now 8th question. The sum of few terms of a GP is 315. 315 sum given है, whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Question number 8. First term 5 given है, common ratio 2 given है, and Sn is equals to 315 given है. ठीक है. Find out the last term and the number of terms. पहले तो number of terms निकालेंगे, तभी last term निकलेगी. तो यहाँ पे हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा. It will be equals to a into r raised power n minus 1 over r minus 1 is equals to 315. A की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 raised power n minus 1 over 2 minus 1 is equals to 315. ठीक है जी. 5 के टेबल में इसको कैंसिल आउट किया, ये आ जाएगा 63, ये तो 1 हो जाएगा. So 2 raised power n is equals to 64, 2 raised power n is equals to 2 raised power 6. It implies n is equals to 6. एक आंसर आ गया. हम लोगों को कहा हुआ है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. इसके बाद हम लोगों को कहा फाइंड आउट द लास्ट टर्म. अगर n 6 है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 6 टर्म हो जाएगी. तो इट इम्प्लाइज l is equals to t6, यानी कि ar raised power 5. So it will become equals to 5 into 2 raised power 5 हो जाएगा. That is 5 multiplied by 32. Answer comes out to be 160. So this is your answer. Okay. So let us start ninth question. Ninth question given that the first term of a GP is 1. In the ninth question, a is equals to 1 given है, और साथ के साथ हमको ये कहा गया है the sum of third term and fifth term is 90. T3 plus T5 is equals to 90 है. So I can write down AR square plus AR raised power 4 is equals to 90. और हम लोगों को ये कहा गया है कि find out the common ratio of the GP. GP की common ratio find out करनी है. बेटा यहाँ पर A की वैल्यू पुट करते हैं. It implies R raised power 4 plus R square is equals to 90. ये स्टेप समझ लगा बेटा. A की वैल्यू 1 पुट कर दिया है और R raised power 4 वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया. It is a kind of biquadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें पावर 2 होती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें पावर 4 होती है. तो इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. r raised power 4 plus r square minus 90 is equals to 0. That is r raised power 4 plus 10r square minus 9r square minus 90 is equals to 0. जस्ट जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वैसे ही इसको सॉल्व करना है. So इसको सॉल्व करेंगे r square into r square plus 10. Secondly minus 9 into r square plus 10 is equals to 0. एक बार आ जाएगा r square plus 10 and secondly r square minus 9 is equals to 0. From here r square plus 10 is equals to 0. इसको रिजेक्ट कर देंगे बेटा जी. Why? Because r square plus 10 is always greater than 0. ये equal to 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है और उसमें 10 ऐड कर दो तो वो 10 या 10 से बड़ी ही होएगी. सो इसको रिजेक्ट कर दिया. r square minus 9 is equals to 0. It implies r is equals to plus minus 3, and that is your answer. Okay. Now question number 10. Given that हम लोग को इसमें ये कहा गया है the sum of 3 numbers of a GP is 56. 3 नंबर का सम 56 है. लेट अस कंसीडर 3 नंबर है a, ar और ar square. Let the 3 numbers are a, ar and ar square. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, इन तीनों का सम जो है वो 56 है. a plus ar plus ar square is equals to 56. इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद हम लोग को ये कहा गया है if we subtract 1, 7 and 21 from these number in the same order,
we obtain an AP. Also according to second condition, जो second condition है बेटा वो कहती है a-1 ar-7 ar² is an AP, क्योंकि हमको ये कहा गया है कि इन तीनों नंबर में सेम ऑर्डर में हम लोग कंसीडर करें और 1, 7 और 21 रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करें, इट विल बिकम एन AP। अच्छा, तीन नंबर अगर AP में होता है तो पहली कंडीशन क्या होती है, 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ABC। अगर AP में है तो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C होता है। तो इट एम्प्लाइज, यहाँ पे देखिएगा मिडल टर्म ये है 2 टाइम AR-7 is equals to A-1 plus AR² minus 21. So 2AR minus 14 is equals to A plus AR² minus 22. 2AR इधर ले जाते हैं, 22 इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा A minus 2AR plus AR² is equals to 22 उधर जाके बेटा हो जाएगा प्लस में, इक्वेशन नंबर 2। और बेटा मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे एपी में दो इक्वेशंस होती थी तो हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट, लेकिन अगर जीपी में दो इक्वेशंस आ जाएंगी व्हाट वी नीड टू डू, डिवाइड। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ये आपके पास बेटा देखिए न्यूमरेटर में से मैं a पहले कॉमन निकाल देता हूँ, 1 प्लस r स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा a कॉमन निकला तो 1 माइनस 2r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 8। ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 इसके साथ कैंसिल आउट, 7/1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट एम्प्लाइज 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 14r प्लस 7r स्क्वायर। चेक कीजिए, नाउ सारी टर्म्स एक साइड पे ले जानी है एंड वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी टर्म्स इधर ले आता हूं मैं, 0 इज इक्वल्स टू 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6। चेक कीजिए, 0 इज इक्वल्स टू 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 हो गया हमारे पास बेटा। अब इसके बाद हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 36 हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे 12 और 3 हो जाएगा। सो वी विल राइट डाउन, हाँ जी चलिए 3 कॉमन निकालना चाहते हैं तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 इज इक्वल्स टू 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6। 0 इज इक्वल्स टू 6r कॉमन निकाला, अंदर आ गया r माइनस 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाला, r माइनस 2। 0 इज इक्वल्स टू 6r माइनस 3 और r माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा बारी बारी से 0 को इक्वल लिखेंगे, एक बार r की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, एक बार r की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू आ गई है और हम लोगों को ये कहा गया फाइंड आउट द नंबर्स, मतलब a, ar और ar स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो पहले a फाइंड आउट कर लें, r की वैल्यू 1/2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1। यहाँ देखिएगा a प्लस 1/2a प्लस 1/4a इज इक्वल्स टू 56, और जब एलसीएम लेंगे क्या जाएगा 4a प्लस 2a प्लस a divided by 4 is equals to 56। 7a is equals to 56 into 4, यहाँ से a की वैल्यू आती है बेटा 32, क्योंकि 7 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा 8 पर, और 8 4 का 32। इसी तरह से r की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट इन 1। 1 में पुट किया 2 प्लस नहीं a प्लस 2a प्लस 4a is equals to 56। यहाँ से बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब दो टर्म्स आ गई, एक a हमारे पास है 32 और r 1/2 है, और एक a हमारे पास 8 और r 2 है। Therefore the numbers are, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, Therefore the numbers are क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 32 16 और 8 हो जाएगा, और दूसरी सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी 8 16 एंड 32। चेक कर लीजिएगा, यही चीज बनेगी। सो देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर आइदर 32 16 एंड 8 और 8 16 एंड 32। नाउ 11th क्वेश्चन, a GP consists of an even number of terms
जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि यहाँ 2 टर्म्स है, 4 या 6 या 8 या 10 या 12, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, find the common ratio. Common ratio find out करनी है, ठीक है। अब क्योंकि even number of terms कहे हैं, let question number 11, let the GP is देखिएगा बेटा AR square, AR cube and so on, AR is per n minus 1, AR is per n, AR is per n plus 1 and so on, AR is per n 2n minus 1। याद है एक हम लोगों ने किया था n plus 1 से लेकर 2n टर्म वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे भी हमने इसी तरह से लिया था। अब क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो n शुड बी इवन। अगर मैं n एज इट इज कंसीडर करूंगा तो मेरे पास दो चांस हो सकते हैं, आइदर n is equals to odd और n is equals to even। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 2n ले लूंगा तो ये गारंटीड इवन होगा। दैट इज व्हाई आई हैव कंसीडर्ड 2n नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि मुझे कहा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। Sn का फार्मूला हो जाएगा a into r raised पर n minus 1 over r minus 1। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ 2n आना है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमारे पास कितनी है 2n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2n है, so we will put here a into r raised पर 2n minus 1 over r minus 1। अब इसके बाद यहाँ कहा है if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places। अब ऑड प्लेसेस लिखते हैं हम लोग जीपी ऑफ ऑड प्लेसेस। देखिएगा बेटा ध्यान से, जीपी ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगी a ar स्क्वायर ar रेज पावर 4 एंड सो ऑन ar रेज टू पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 2n टर्म है इवन टर्म है तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट टर्म इसकी ना ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि सम ऑफ दीज ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ दीज टर्म। पहले इसका सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? हाफ हो जाएगी। हमने 2n कंसीडर किया तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? n, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ लिख लेते हैं n टर्म्स ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन रेशियो कितनी है चेक कीजिए, r स्क्वायर है, ठीक है। लेट Sn डैश इज द सम ऑफ दीज ऑड नंबर ऑफ टर्म, जो ऑड प्लेसेस में टर्म है इनका सम है Sn डैश। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो क्या थी r स्क्वायर, उसकी पावर n ओवर r स्क्वायर माइनस 1। चेक कीजिए आ गया आपके पास, नीचे r स्क्वायर माइनस 1 आएगा क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो हमारे पास r स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn is equals to 5 times Sn dash। सारी टर्म्स का सम जो है वो 5 टाइम्स Sn डैश के बराबर है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं a into r raised by 2n minus 1 over r minus 1 is equals to 5 times a into r raised by 2n minus 1 over r square minus 1। चेक कीजिए यहाँ पे r raised by 2 उसकी पावर n था तो r raised by 2n ही हो जाएगा। न्यूमरेटर कैंसिल आउट, a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 1 over r minus 1 is equals to 5 over r minus 1 into r plus 1। ये स्टेप समझ लगा बेटा, a square minus b square का फॉर्मूला। अब ये r minus 1 कैंसिल आउट, ये r plus 1 इधर हो जाएगा, r plus 1 is equals to 5, so r is equals to 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये GP थी उसकी कॉमन रेशियो हमारे पास कितनी है 4। ओके, सो कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन 11th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन बेटा गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56। देखिए S4 हम लोगों को गिवन है 56, ठीक है जी। S4 का फार्मूला लगाते हैं 4/2 into 2a plus 3b is equals to 56 गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये कहा है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। ये बाद में देखते हैं, पहले आगे देखें।
फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। पहले फर्स्ट टर्म 11 के बनाए, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 into 11 plus 3d is equals to 56, so 22 plus 3d is equals to 26, 26 नहीं 28, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गया, so 3d is equals to 6 आ गया, मतलब कि d is equals to 2 आ जाता है। चेक कीजिए, d हमारे पास 2 आ गया। अब इसके बाद हमको ये कहा सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। अब देखिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि सम ऑफ नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला, जैसे क्वेश्चन किया था ना, सम ऑफ 5 टर्म्स इतना है और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, तो हम लोगों ने S10 माइनस S6 कर लिया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता, फिर मैं S10 या S11 या 12 करूं, क्या करूं मैं उसमें से। तो लास्ट 4 टर्म्स हम लोग देखिए किस तरह से हम लोग उनका सम निकालते हैं। last 4 terms of AP, last 4 terms of AP are, दो तरीके से किया जा सकता है बेटा। मैं पहले एक तरीके से करूंगा, फिर दूसरे तरीके से कराऊंगा, आपने जैसे करना होगा वैसे कर लीजिएगा। अच्छा, nth टर्म क्या होती है? a plus n minus 1 टर्म, ठीक है जी। लास्ट 4 टर्म्स आर a plus n minus 1 into d, अगली हो जाएगी a plus n minus 2 into d, उससे बाद a plus n minus 3 into d, and then a plus n minus 4 into d। अब बेटा मुझे ये कहा गया कि ये लास्ट 4 टर्म्स है, इनका सम 112 है, ठीक है जी। गिवन दैट, यहां पे लिखते हैं गिवन दैट ये चारों टर्म्स का सम, देखिए ये 4 टर्म्स ऐड करके देखिए a plus a plus a plus a कितना हो गया? 4a हो गया। गिवन दैट, चलिए पहले सम ही लिख लेता हूं मैं, a plus n minus 1 into d plus a plus n minus 2 into d plus a plus n minus 3 into d plus a plus n minus 4 into d is equals to 112 गिवन है। ये मुझे 112 गिवन है। आई नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए यहाँ से पहले एक और इक्वेशन बना लेते हैं। इट विल बिकम 4a प्लस, अच्छा देखिएगा 1 2 3 और 4, 4 बार n आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ 4n माइनस 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10, d is equals to 112। a और d की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, a और d की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। इट विल बिकम a कितना था? 11 था, 4 into 11 plus 4n minus 10 into 2 is equals to 112। 44 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4n minus 10 into 2 is equals to 68 आ जाएगा। 112 में से 44 माइनस करें 68 आ जाता है, तो 4n minus 10 will become 34, 4n will become 44, n will become 11। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई? 11। अब यहाँ पे रुकिए, मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के। एक मैंने पिछली लास्ट की 4 टर्म्स लिख ली हैं, एक टर्म और एक मेथड और होता है बेटा लिखना, तो लिख लीजिएगा another method। Let us consider S4 dash denotes the sum of last 4 terms। S4 dash denotes the sum of last 4 terms। This will be equals to 4 by 2 into 2n plus 4 minus 1 into minus d। ये मैंने क्या किया है, कोई बता सकता है? याद है 10th क्लास में हमने एक एपी का फॉर्मूला किया था, अभी nth टर्म फ्रॉम एंड। हम लोग क्या करते थे, या तो d माइनस कर देते थे या फिर हम लोग क्या करते थे उसका रिवर्स ऑर्डर ले लेते थे। तो जब रिवर्स ऑर्डर लेते हैं तो जो लास्ट टर्म है रिवर्स ऑर्डर में लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी और जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ 112 पुट कर दीजिए, एल मुझे नहीं पता कितना है, एल बाद में देखेंगे, डी की वैल्यू पुट करके यहाँ से आपके पास एल आएगा। क्या आएगा? एल। और उसके बाद फिर आप लोग एल का फॉर्मूला लगाएंगे a plus n minus 1 into d, वहां से भी आप लोग n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपने इस मेथड से करना है या उस मेथड से करना है, दैट इज योर चॉइस। कहीं नहीं कहा होता कि आपने इस मेथड से करना है, ओके, जैसे मर्जी कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए बेटा 13th क्वेश्चन, ये मैं बाद में करते हैं, हम लोगों ने प्रूफ वैसे ये करना है b over a is equals to c over b is equals to d over c। 13th क्वेश्चन में बेटा देखिए गिवन हम लोगों को क्या है, a plus bx over a minus bx
a plus bx over a minus bx is equals to b plus cx over b minus cx is equals to c plus dx over c minus dx. And we need to prove that b over a is equals to c over b is equals to d over c. ये चीज प्रूव करनी है. अब देखिए यहाँ पे पहले मैं ये दोनों टर्म्स कंसीडर करता हूँ. देखिएगा a plus bx over a minus bx is equals to b plus cx over b minus cx. इसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a plus bx into b minus cx is equals to, बेटा पहले समझ लीजिएगा, b plus cx into a minus bx. मैं समझ लिए इसलिए कह रहा हूँ बेटा जी ये क्वेश्चन, ये तरीका थोड़ा लेंथी है. दूसरा तरीका जब मैं बताऊंगा तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग दूसरे तरीके को प्रेफर करोगे. तो पहले ये समझ लीजिए, कई बार होता है कि दूसरा तरीका माइंड में नहीं आता है. इनको हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है. जस्ट अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ab minus acx plus b square x minus bc x square is equals to ab minus b square x plus acx minus bc x square. अब अगर सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाए तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए ab जो है ab के साथ कट जाएगा. acx माइनस का नहीं, ये नहीं करेगा. bcx स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये साइन सेम है, दूसरी साइड पे जाके चेंज हो जाएंगे. अब मेरे पास बचा है यहाँ पे मैं लिखता हूँ b square x और प्लस b square x, और यहाँ पे बचा है मेरे पास acx प्लस acx. It will become 2 times b square x is equals to 2 times acx. 2 और 2 कट गया, x और x कट गया. b square is equals to ac. याद करो, एडिशन आ गई. If 3 numbers are in GP then b square is equals to ac. अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, b into b is equals to ac. एक b इसके नीचे ले आओ और a इसके नीचे ले आओ. It implies b over a is equals to c over b. Hence a b c are in GP. ठीक है. अब हमने प्रूव करना BCD are in GP, तो अब की बार हम लोग इन दोनों को कंसीडर करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे और आपके पास इसी तरह से रिजल्ट आएगा. अंडरस्टैंड? मतलब एक पोर्शन आपने सारा सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा पोर्शन सॉल्व करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे, दूसरा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आएगी. फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिखेंगे p over a equals to c over b equals to d over c. अंडरस्टैंड? इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा मेथड बताता हूं आपको. नाउ स्टूडेंट्स, another method, दूसरा मेथड, another method हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी apply componendo and dividendo. apply componendo and dividendo. बार-बार componendo and dividendo लिखने की जाए मैं c and d लिख रहा हूँ. ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए it will become a plus bx plus a minus bx divided by a plus bx minus a plus bx. ये स्टेप समझ लगा बेटा जी? इसके बाद b plus cx plus b minus cx divided by b plus cx minus b plus cx. Again c plus dx plus c minus दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करते हैं, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये रिजल्टेंट बनता है. अब एक बार याद रखिएगा, जब हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नंबर्स आते हैं ना, तो जो कॉमन नंबर होता है वो रिमूव हो जाता है. हम लोग ये नहीं कहते कि उसको काट दिया दोनों साइड में. कॉमन नंबर इज ऑलवेज रिमूव. पहले तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएंगे, उसके बाद x थ्रू आउट है ये रिमूव हो जाता है, एंड वी गेट a over b is equals to b over c is equals to c over d. ये चेक करके देख लीजिए, यहाँ इसको रेसिप्रोकेट करना है तो b over a is equals to c over b is equals to d over c. वही चीज आ गई. Hence a, b, c, d, a, b, c, d are in GP. इसका मतलब a, b, c, d GP में. आपकी चॉइस है आपने किस मेथड से करना है. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Let S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocals of n terms of GP. Prove that P square R raised per n is equals to S की power n. Let us consider a GP is, let us consider a GP of n terms.
n टर्म्स क्या है, a ar square, ar cube and so on, ar raised पर n minus 1. ये हमारे पास एक gp है. अब यहाँ पे हमको गिवन है s is the sum of n terms of this gp. According to question, s is equals to a into r raised पर n minus 1 over r minus 1, sum of n terms of gp. और उसके बाद p जो है, p हमको कहा है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ gp. यहाँ देखिए बेटा, a मल्टीप्लाई बाय ar मल्टीप्लाई बाय ar स्क्वायर एंड सो ऑन ar रेज़ पर n minus 1. याद है हमने एक क्वेश्चन इसके जैसा किया था और इसका आंसर आया था a रेज़ पर n into r रेज़ पर n into n minus 1 डिवाइडेड बाय 2. याद है कि नहीं? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसका सम लिख दिया. अगर नहीं पता लगा तो तभी देखिए a मल्टीप्लाई बाय a एंड सो ऑन n टाइम्स. ठीक है, ये हो जाएगा a की पावर n. और उसके बाद जब r को मल्टीप्लाई किया, बेटा बेस सेम है, पावर विल बी एडेड. और पावर कितनी है हमारे पास, 1 से लेकर n-1. ये कितनी टर्म्स हो जाएगी, n-1 टर्म्स होगी पुत्र, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 पावर कहाँ से शुरू हुई थी, सेकंड टर्म से शुरू हुई थी, एक टर्म पहले जा चुकी है. इसका मतलब वो n-1 टर्म्स होगी. अगर आपको लगता है गड़बड़ लगती है, आप ऐसे कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाय r की पावर 0 प्लस. अब आपके पास ये n टर्म्स हो जाएगी और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फार्मूला लगाकर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद कैपिटल R मुझे कहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म. मतलब क्या है, कैपिटल R के बने 1 by a plus 1 by ar plus 1 by ar square and so on plus 1 by ar raised पर n minus 1. मतलब जो gp है उसकी टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर दीजिए और उसका सम फाइंड आउट करना है. बेटा एक बार याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई gp है उसको आप लोग रेसिप्रोकेट करते हो ना, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी gp ही रहती है. रिजल्टेंट सीक्वेंस भी gp ही रहती है. यू कैन चेक हियर. फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, 1 by a कॉमन रेशियो कितनी हो जाएगी मुझे चेक करो, 1 by r हो जाएगी, 1 by r हो जाएगी. नंबर ऑफ टर्म्स रिमेन द सेम. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज कैपिटल R इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म into 1 minus 1 by r raised पर n over 1 minus 1 by r. Can you explain कि मैंने यहाँ पे 1 minus 1 by r raised पर n क्यों लिखा? अजी बिकॉज यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि r is greater than 1, और अगर r greater than 1 है तो पुत्र जी उसका रेसिप्रोकल हमेशा less than 1 होगा. इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं. कैपिटल R is equals to 1 over a r raised पर n minus 1 over r raised पर n over r minus 1 over r. ठीक है, तो ये r इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अल्टीमेटली जो मेरे पास बचता है 1 by a r raised पर n minus 1, देखिएगा, into r raised पर n minus 1 over r minus 1. ठीक है जी, ये बच गया मेरे पास. इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बाकी करते हैं हम लोग. Now in this question we to prove that p square into r raised पर n is equals to s raised पर n. इधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए. नाउ लेफ्ट हैंड साइड p square into r raised पर n. बेटा p क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स. वो क्या आया था, a raised पर n into r raised पर n into n minus 1 divided by 2 उसका स्क्वायर. ठीक है जी, और r raised पर n की वैल्यू ये आई हुई है, मल्टीप्लाई बाय 1 over ar raised पर n minus 1 into r raised पर n minus 1 over r minus 1 raised to power n. ठीक है जी, चलिए पहले ये जरा मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर दूं. ये आ जाएगा मेरे पास a raised पर 2n r raised पर n into n minus 1. जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a raised पर 2n ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, into 1 over a raised पर n r raised पर n into n minus 1. वो पावर n है. ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय r raised पर n minus 1 over r minus 1 raised पर n. अच्छा, ये टर्म कट गई इसके साथ. अब a raised पर 2n को a raised पर n से डिवाइड किया, इट विल बिकम a raised पर n into r raised पर n minus 1 over r minus 1 raised पर n. दोनों की कंबाइंड पावर लिख दूं. I can write it a into r raised पर n minus 1
over r minus 1 whole raised to power n. And बेटा जी you can see that this was s, ये s था ना, तो इसको लिख सकते हैं s raised to power n which is equals to right hand side. Therefore p square r raised to power n is equals to s raised to power n. बेटा मेरे को नंबर 2 की बजाय n आना है, ठीक है. Now 15th question, the pth, qth and rth terms of an APR ABC respectively. 15th question, AP is equals to A, AQ is equals to B, AR is equals to C. ठीक है. Prove that Q minus R into A plus R minus P into B plus P minus Q into C is equals to 0. यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कैपिटल A plus P minus 1 into D is equals to A. It implies capital A plus Q minus 1 into D is equals to B. It implies capital A plus R minus 1 into D is equals to C. Equation 1, equation 2, equation 3. बेटा हम लोगों को कहा गया prove that Q minus R into A, R minus P into B, P minus Q into C is equals to 0. क्या करना है? Multiply 1 by Q minus R, 2 by R minus P and 3 by P minus Q and add. और इसके बाद ऐड करना है. सो हमारे पास आ जाएगा A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q. और राइट हैंड साइड पे बेटा जी आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 प्रूव करना है. ओके, ठीक है बेटा. So remaining this question you have to do yourself. Okay, so that's all from my side for today's lecture. Remaining question हम लोग बाद के लेक्चर में करेंगे.